Hi friends, welcome to my YouTube channel. So let's start the rapid revision of PSM. 231 पॉइंट है हमारा फोरेंसिक फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सीमेन. फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सीमेन. मेडिको लीगल ऑटोप्सी रिक्वायर द परमिशन ऑफ पुलिस. मेडिको लीगल ऑटोप्सी रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ पुलिस. कॉर्पस डेलिक्टाई मीन्स एसेंस ऑफ क्राइम. Corpus delicti means essence of crime. Atavism is resemblance of features to grandfather. Atavism क्या है? Resemblance of features to grandfather. Adipocere saponification. Adipocere में is saponification. Sweetish smell occurs due to the gradual हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स. एडिपोसियर को सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है. इसमें जो होती है स्वीटिश स्मेल ऑकर्स ड्यू टू द ग्रेजुअल हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज 236. मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू बी प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस इज 10 ml. मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड टू प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस इज 10 ml. CSF is required to be preserved in alcoholic poisoning. CSF is required to be preserved in alcoholic poisoning. Lungs are preserved in alcohol or HCN or carbon monoxide poisoning. Ideal place to record body temperature in a dead body is rectum. Ideal place to record the body temperature in a dead body is rectum. Rigor mortis starts in heart. Rigor mortis starts in heart. Rigor mortis occurs first in which voluntary muscle? Muscle of eyelids. Muscle of eyelids ये voluntary muscle में जो है वो ये फर्स्ट voluntary muscle होती है जहाँ पे rigor mortis जो है वो फर्स्ट डेवलप होता है, स्टार्ट होता है. Foamy liver is characteristic of putrefaction. Foamy liver is characteristic of putrefaction. Rigor mortis develops after death 1 to 2 hours. Cadaveric spasm immediate after death or affects the voluntary muscles. Cadaveric spasm immediate after the birth or affects the voluntary muscles. Antidote for mercury poisoning is BAL. Mummification refers to desiccation of a dead body. Mummification refers to desiccation of a dead body. Honeycombing is seen in liver in case of putrefaction. Honeycombing is seen in liver in case of putrefaction. Putrefaction में जब liver में honeycombing दिखाई देती है. Death sentence can be awarded by session court. Death sentence can be awarded by session court. Session court के ज़रिए death sentence जो है वो दिया जाता है. Correct order of putrefaction. करेक्ट ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ पुट्रीफैक्शन क्या है? सबसे पहले ब्रेन पुट्रीफाई होगा, देन हार्ट एंड देन यूटेरस. फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेस. मैगॉट्स इन रेनी डे आर सीन विद इन 2 to 4 days. Maggots in rainy day are seen within the 2 to 4 days. Maggots in a dead body do not appear before 48 hours. Medical certificate is documentary evidence. Medical certificate is documentary evidence. McNaughton's rule. McNaughton's rule section 84. Section 84 is McNaughton's rule. In case of hanging, neck ligature mark are printed abrasion. In case of hanging, neck ligature marks are printed abrasion. Death of judicial hanging is because of fracture of dislocation of upper cervical vertebra. Fracture dislocation of upper cervical vertebra. Death of judicial hanging. जुडिशियल हैंगिंग में जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू दी फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा. Saliva dribbling from mouth is characteristic of antemortem hanging. Saliva dribbling from mouth. Saliva dribbling from mouth is characteristic of antemortem hanging. Antemortem hanging में जो है वो dribbling of saliva मिलता है. Priapism. Priapism occurs in कैंथेराइड पॉइजनिंग. कैंथेराइड पॉइजनिंग में जो है वो प्रियापिज्म होता है. वाइपर स्नैक वेनम इज
hematotoxic or vasculotoxic. Viper snake venom is hematotoxic or vasculo. V for viper, V for vasculotoxic. vasculotoxic और hematotoxic. Viper snake venom जो होता है वो hematotoxic और vasculotoxic होता है. Venom of sea snake is mostly myotoxic. सी स्नैक का जो वेनम होता है, वेनम ऑफ सी स्नैक इज मोस्टली जो है मायोटॉक्सिक होता है, मसल्स के लिए टॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक. क्रेट एंड कोबरा स्नैक्स आर न्यूरोटॉक्सिक. क्रेट एंड कोबरा स्नैक्स जो होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं. नग्स वोमिका इज सीड कंटेनिंग स्ट्रिकनिन और यूज्ड एज कैटल पॉइजन. नग्स वोमिका इज सीड कंटेनिंग स्ट्रिकनिन और यूज्ड एज कैटल पॉइजन के तौर पर भी जो है कुछ लाजराकी नग्स वोमिका को जो है वो यूज़ किया जाता है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग इज एट्रोपिन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम की पॉइजनिंग अगर हुई है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एट्रोपिन है. स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग ऑल मसल्स अफेक्ट्स एट सेम टाइम. स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में ऑल मसल्स अफेक्ट एट द सेम टाइम. Cherry red color of blood is seen in poisoning with cyanide. C for cyanide and C for cherry red. Cherry red color of blood is seen in poisoning with, cherry red color का blood हो जाता है is seen in poisoning with cyanide. Bright red hypostasis is seen in cyanide और carbon monoxide poisoning. Bright red hypostasis is seen in cyanide और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. सैलिसिलेट पॉइजनिंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेड इज. सैलिसिलेट पॉइजनिंग के लिए जो ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है वो क्या है, फोर्स्ड डायूरेसिस की जाती है सैलिसिलेट पॉइजनिंग में. हीमोडायलिसिस इज इंडिकेटेड इन मिथेनॉल की अगर पॉइजनिंग हुई तो हीमोडायलिसिस इज इंडिकेटेड. हीमोडायलिसिस करनी होती है अगर मिथेनॉल की पॉइजनिंग हुई है तो. गैस्ट्रिक लवाज इज कंट्रा इंडिकेटेड इन पॉइजनिंग ऑफ कीरोसिन की अगर पॉइजनिंग है तो गैस्ट्रिक लवाज जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है. एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन बारबिचूरेट्स की अगर पॉइजनिंग है तो एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किए जाते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन बारबिचूरेट्स. फॉलोइंग नोन एज थॉर्न एप्पल किसे कहेंगे, धतूरा अल्बा या धतूरा नाइग्रा, इन्हें जो है वो थॉर्न एप्पल कहा जाता है. एंटीडोट फॉर एक्यूट आयरन पॉइजनिंग. एक्यूट आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, NaEDTA जो है वो एंटीडोट होता है एक्यूट आयरन पॉइजनिंग का. स्पैरो मार्क्स आर सीन इन विंडशील्ड ग्लास इंजरी. स्पैरो मार्क्स आर सीन इन विंडशील्ड ग्लास इंजरी. जब ग्लास टूटता है तो उसके ज़रिए जो है वो स्केचेस या स्पैरो मार्क्स लाइक जो है वो दिखाई देते हैं तो उसे विंडशील्ड ग्लास इंजरी के समझा जाता है कि विंडशील्ड ग्लास इंजरी है, इसकी वजह से स्पैरो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं. सोडियम फ्लोराइड एज प्रिजर्वेटिव फॉर अल्कोहल के प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो सोडियम फ्लोराइड यूज़ किया जाता है. स्पेसिमेन फॉर टॉक्सिकोलॉजी स्टडी आर प्रिजर्व्ड इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में जो है वो प्रिजर्व किया जाता है स्पेसिमेन टॉक्सिकोलॉजी के लिए. यूरिन इज स्टोर्ड इन थाइमॉल में जो यूरिन को स्टोर किया जाता है. सीवर गैस जो होती है वो H2S और CO2. सीवर गैस किसे बोलते हैं, H2S और CO2 को जो है वो सीवर गैस कहते हैं. पिन पॉइंटेड प्यूपिल्स आर सीन इन OMPA और ओपियम पॉइजनिंग. OMPA और ओपियम पॉइजनिंग में जो वो पिन पॉइंट प्यूपिल्स दिखाई देते हैं. प्लांट पेनिसिलिन क्या है, एंड्रीन जो है वो प्लांट पेनिसिलिन है. प्लांट पेनिसिलिन इज एंड्रीन. OPC पॉइजनिंग पॉइजन स्वेट, लैक्रिमेशन, ब्रैडी और पिन पॉइंट प्यूपिल, मियोसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
अस्थमा सिम्टम्स। ओपीसी, अगर ओपीसी पॉइजनिंग है तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा? ओपीसी पॉइजनिंग में स्वेट मिलेगा, लैक्रीमेशन होगा, ब्रैडीकार्डिया मिलेगा, पिन पॉइंट प्यूपिल्स रहेंगे, मियोसिस रहेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड अस्थमेटिक सिम्टम्स मिलते हैं। मोस्ट कॉमन डेथ बाय सुसाइड इज बाय इंसेक्टिसाइड। Datura poisoning is characterized by dilated pupil with facial flush. Dilated pupil है with facial flush है तो datura poisoning को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। लीड पॉइजनिंग, एब्डोमिनल पेन, इंसेफेलोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। लीड पॉइजनिंग अगर है तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? एब्डोमिनल पेन मिलेगा, इंसेफेलोपैथी और नेफ्रोपैथी दिखाई देती है। लीड पॉइजनिंग में एब्डोमिनल पेन होगा, इंसेफेलोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट विथ सिम्टम्स मिमिकिंग कॉलेरा। जो आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो सिम्टम्स होते हैं वो मिमिक करते हैं किसको? कॉलेरा को। पॉइजन दैट कैन बी डिटेक्टेड इन हेयर लॉन्ग आफ्टर डेथ इज आर्सेनिक। पॉइजन दैट कैन बी डिटेक्टेड इन हेयर लॉन्ग आफ्टर डेथ इज आर्सेनिक। मैग्नान सिम्टम इज फॉर्मिकेशन। मैग्नान सिम्टम इज फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन जो था वो मैग्नान सिम्टम होता है। सेंसेशन ऑफ क्रीपिंग बग्स ओवर द बॉडी इज अ फीचर ऑफ कोकेन पॉइजनिंग में जो है सेंसेशन ऑफ क्रीपिंग बग्स ओवर द बॉडी, ये एक फीचर दिखाई देता है किसमें मिलता है? कोकेन पॉइजनिंग में। कोकेन पॉइजनिंग में जो है सेंसेशन होता है, ऐसे सेंसेशन होता है कि जल्दी के नीचे जो है वो बारीक बारीक कीड़े जो है वो चल रहे हैं, ऐसे सेंसेशन कोकेन पॉइजनिंग में होता है। ब्लैक टंग इज सीन इन एब्यूज ऑफ कोकेन। कोकेन में जो है वो ब्लैक टंग जो है वो कोकेन एब्यूज़र में जो है हमें ब्लैक टंग देखने को मिलती है। कोकेन एब्यूज़र में ब्लैक टंग होती है। चरस इज रेजिन एक्सुडेट ऑफ कैनाबिस इंडिका। चरस क्या है? चरस इज रेजिन एक्सुडेट है, रेजिन है, रेजिन एक्सुडेट ऑफ कैनाबिस इंडिका। गांजा इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग टॉप्स। फ्लावरिंग टॉप से जो है वो गांजा ऑब्टेन किया जाता है। गांजा इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग टॉप्स। यूरिन अपीयर्स लिक्विड गोल्ड इन विच पॉइजनिंग? यूरिन अपीयर्स लिक्विड गोल्ड इन विच पॉइजनिंग? बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स की पॉइजनिंग में जो है वो लिक्विड गोल्ड की तरह यूरिन अपीयर होती है। मॉर्बिड जेलसी इज डायग्नोस्टिक ऑफ अल्कोहलिज्म। मॉर्बिड जेलसी इज डायग्नोस्टिक ऑफ अल्कोहलिज्म। Arsenic causes raindrop pigmentation, palmar hyperkeratosis and anemia. Arsenic causes raindrop pigmentation, palmar hyperkeratosis and anemia. McCone sign is seen in alcoholic intoxication. Alcoholic intoxication में McCone sign मिलती है। Optic atrophy can be caused by methyl alcohol poisoning. methyl alcohol poisoning में जब ऑप्टिक एट्रोफी मिलती है, होती है। ऑप्टिक एट्रोफी किसकी वजह से होती है? मिथिल अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी होती है। मिथिल अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी होती है। इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म डेलिरियम ट्रेमेंस और वर्निक्स और कॉर्सकॉफ्स। क्रोनिक अल्कोहलिज्म में जो है वो डेलिरियम ट्रेमेंस मिलते हैं, डेलिरियम ट्रेमेंस, वर्निक्स और कॉर्सकॉफ्स, ये जो है क्रोनिक अल्कोहलिज्म में पाया जाता है। ड्राई वाइन इज क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट इज ड्राई वाइन। ड्राई वाइन इज क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट क्या है? ड्राई वाइन है। मीनिंग ऑफ टर्म विट्रियोलेज। विट्रियोल थ्रोविंग यानी कि जो भी एसिड फेंका जाता है, विट्रियोल यानी कि एसिड वगैरह जो भी फेंका जाता है तो उसको विट्रियोल थ्रोविंग को विट्रियोलेज कहते हैं। एंटीडोट फॉर ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग का एंटीडोट जो होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? एंटीडोट है फॉर ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग का एंटीडोट जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट है। ग्रीन कलर यूरिन सीन इन पॉइजनिंग ऑफ कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में ग्रीन कलर यूरिन दिखाई देती है।
ब्राउन कलर यूरिन इज सीन इन नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग, नाइट्रिक एसिड की पॉइजनिंग है तो उसमें ब्राउन कलर यूरिन मिलेंगी। कॉज ऑफ डेथ इन साइनाइड पॉइजनिंग, कॉज ऑफ डेथ इन साइनाइड पॉइजनिंग इज हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया की वजह से जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग में डेथ होती है। बिटर आलमंड स्मेल फाउंड इन, बिटर आलमंड स्मेल फाउंड इन हाइड्रोसाइनिक पॉइजनिंग, बिटर आलमंड स्मेल फाउंड इन हाइड्रोसाइनिक पॉइजनिंग। Hatter's shake, Hatter's shake is seen in mercury poison, मर्क्यूरी पॉइजनिंग में जो है वो हैटर्स शेक दिखाई देता है। हैटर्स शेक इज सीन इन मर्क्यूरी पॉइजनिंग। इरिथ्रिज्म ऑकर्स इन मर्क्यूरी, इरिथ्रिज्म ऑकर्स इन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की वजह से क्या होता है, इरिथ्रिज्म होता है। ब्लू लाइन ऑन द गम्स, लीड पॉइजनिंग में हमें ब्लू लाइन्स ऑन द गम्स मिलती है, ब्लू लाइन ऑन द गम्स लीड पॉइजनिंग। मार्बलिंग इज नोटिस्ड बाय 36 आवर्स, नो मार्बलिंग, marbling is noticed by 36 hours. Marsh's test is used in detection of arsenic, Marsh's test is used in detection of arsenic, arsenic डिटेक्शन के लिए जो वो Marsh's test से किया जाता है। कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग पोस्टमार्टम फाइंडिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग पोस्टमार्टम फाइंडिंग जो होती है वो लेदरी स्टमक होता है इसमें, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में। नेक्रोसिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कॉज्ड बाय फेनॉल, अगर नेक्रोसिस पीसीटी में हो रही है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हो रही है तो वो किसकी वजह से होती है, फेनॉल की वजह से, फेनॉल की वजह से पीसीटी में नेक्रोसिस होती है। मेटल पॉइजनिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय एनालाइजिंग बोन आर्सेनिक, बोन को एनालाइज करके कौन सा पॉइजन, कौन सा मेटल पॉइजन डिटेक्ट किया जाता है, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक को जो है वो बोन की एनालिसिस करके जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डिफ्लोरेशन इज रप्चर ऑफ हाइमेन, डिफ्लोरेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो होती है वो रप्चर ऑफ हाइमेन होता है। लोअर एंड ऑफ द फीमर कैन हेल्प टू डिटरमाइन एज, लोअर एंड ऑफ फीमर कैन हेल्प टू डिटरमाइन द एज, एज को डिटरमाइन करने के लिए फीमर का लोअर एंड जो है वो मददगार होता है। स्पाल्डिंग साइन डायग्नोस्टिक ऑफ फीटल डेथ, स्पाल्डिंग साइन डायग्नोस्टिक होती है, डायग्नोस्टिक ऑफ फीटल डेथ, फीटल डेथ को शो करती है स्पाल्डिंग साइन। एवरेज लेंथ ऑफ फुल टर्म चाइल्ड विल बी अबाउट 50 सेंटीमीटर्स, एवरेज लेंथ ऑफ फुल टर्म चाइल्ड विल बी अबाउट 50 सेंटीमीटर्स। एमटीपी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971, 1971 में एमटीपी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। लीगल एज बाय विच fetus is capable of independent existence is 210 days, 210 दिन जो होते हैं वो लीगल एज है, लीगल एज होती है बाय विच fetus is capable of independent existence। Bestiality is having intercourse with animal, having intercourse with animal is bestiality। 318 पॉइंट है हमारा बेस्टियलिटी, बेस्टियलिटी क्या है, हैविंग इंटरकोर्स विद एनिमल इज नोन एज बेस्टियलिटी। इयोनिज्म क्या है, इयोनिज्म डिज़ायर टू आइडेंटिफाई विथ अपोजिट सेक्स, डिज़ायर टू आइडेंटिफाई विथ अपोजिट सेक्स इज नोन एज इयोनिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म क्या है, वियरिंग क्लॉथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स, वियरिंग क्लॉथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के कपड़े के जैसे कपड़े पहनना जो है वो ट्रांसवेस्टिज्म कहलाता है। शेप ऑफ नल्लीपैरस सर्वाइकल कैनाल, नल्लीपैरस सर्वाइकल कैनाल जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, उसका शेप जो होता है, शेप ऑफ द नल्लीपैरस सर्वाइकल कैनाल इज ट्रांसवर्स। इन रप्चर ऑफ हाइमेन ऑफ वर्जिन टियर इज इन पोस्टेरोलैटरल, इन रप्चर ऑफ हाइमेन ऑफ वर्जिन, वर्जिन में अगर रप्चर ऑफ हाइमेन हो रहा है तो टीयर जो होता है वो पोस्टेरोलैटरल में होता है, पोस्टेरोलैटरल साइड में टीयर दिखाई देगा। स्टेचुटरी रेप इज रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 years, रेप ऑफ वुमेन अंडर 16 year इज नोन एज स्टेटूटरी रेप। गोल्डन हेयर एंड रेड वेलवेटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज सीन इन आर्सेनिक, आर्सेनिक में जाओ गोल्डन हेयर एंड रेड वेलवेटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, रेड वेलवेटी
गैस्ट्रिक म्यूकोजा मिलेगा और गोल्डन हेयर्स मिलते हैं किसमें, आर्सेनिक में। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा इज रिलेटेड विथ हिप्पोक्रेटिक ओथ। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा इज रिलेटेड विथ हिप्पोक्रेटिक ओथ। Mental retardation is defined when IQ is below the 70. When IQ is below 70, then is known as mental retardation. For exhumation order should be passed by. For exhumation order should be passed by executive magistrate. Executive magistrate जो है वो exhumation के लिए order पास करता है। exhumation यानी कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि जो डेड बॉडी है जिसको दफन कर दिया गया है उसे वापस से निकालना एक्सह्यूमेशन कहलाता है। तो एक्सह्यूमेशन ऑर्डर कौन पास करता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्सह्यूमेशन ऑर्डर पास करती है। पोस्टमार्टम ऑटोप्सी इज डन फॉर। पोस्टमार्टम ऑटोप्सी इज डन फॉर होल बॉडी। होल बॉडी के लिए की जाती है ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम ऑटोप्सी होल बॉडी के लिए की जाती है। कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया, पुलिस इंक्वेस्ट। कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया, मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है इंक्वेस्ट की इंडिया में तो वो होती है पुलिस इंक्वेस्ट। डाउरी डेथ पनिशमेंट इज 7 years प्लस 20,000 रुपीज़। 7 years की पनिशमेंट होती है प्लस उसके अलावा 20,000 रुपये जो है वो एज अ पेनल्टी जो है देना पड़ता है डाउरी डेथ में। डाउरी डेथ यानी कि डाउरी डेथ पनिशमेंट। डाउरी डेथ पनिशमेंट किसे कहेंगे, डाउरी डेथ का मतलब ये होता है कि अगर किसी दहेज का मामला है तो उसकी वजह से अगर किसी वुमेन पर घरेलू हिंसा हुई है तो उसे और इसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है तो घर वाले या हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स की वजह से, घर वालों की वजह से अगर वो डेथ हो रही है तो वो डाउरी डेथ कहलाती है। तो घरेलू हिंसा की वजह से जो डेथ होती है उसकी सज़ा जो होती है उसमें जो है वो 7 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज सब अरेक्नॉइड हेमरेज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज सब अरेक्नॉइड हेमरेज। थंडरक्लैप हेडेक इज सीन इन सब अरेक्नॉइड हेमरेज। सब अरेक्नॉइड हेमरेज में हमें थंडरक्लैप हेडेक मिलता है। थंडरक्लैप हेडेक इज सीन इन सब अरेक्नॉइड हेमरेज। डक ड्राइविंग फॉलिंग फीट फर्स्ट इनटू वाटर कॉजेज इमर्जन सिंड्रोम। डक डाइविंग फॉलिंग फीट फर्स्ट। डक डाइविंग क्या है, फॉलिंग फीट फर्स्ट। जो पैर होते हैं वो पहले फॉल होते हैं पानी में तो इसकी वजह से क्या होता है, इमर्जन सिंड्रोम होता है। इमर्जन सिंड्रोम डक डाइविंग भी बोलते हैं इसको। जब डक डाइव करती है, जब डक जो है वो पानी में उतरती है तो पहले उसके पैर जाते हैं पानी में तो उसको फॉलिंग फीट फर्स्ट। तो डक डाइविंग और फॉलिंग फीट फर्स्ट इनटू वाटर कॉजेज इमर्जन सिंड्रोम। तो इसकी वजह से क्या होगा, इमर्जन सिंड्रोम होता है। साइट फॉर लुकिंग फॉर डाइटम्स इन बॉडी पोस्ट ड्राउनिंग बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। साइट फॉर लुकिंग फॉर डाइटम्स। डाइटम्स देखने के लिए जो साइट होती है इन बॉडी पोस्ट ड्राउनिंग। ड्राउनिंग के बाद जो है पोस्ट ड्राउनिंग बॉडी में डाइटम्स को कहाँ पर देखा जाता है, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में जो है वो डाइटम्स को देखा जाता है ड्राउनिंग के बाद। कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस इज सीन इन। कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस इज सीन इन ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग में हमें कॉफ़ी ग्राउंड वोमिटस मिलता है। किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स इज फिलिसाइड। फिलिसाइड कहलाता है किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को मार रहे हैं तो वो फिलिसाइड कहलाता है। किलिंग ऑफ चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स इज फिलिसाइड। पिंचिंग causes pupils dilate with slow return in alcohol. Pinching causes pupils dilate with slow return in alcohol. McEwen sign. McEwen sign क्या है, McEwen sign is pinching causes pupils dilated with slow return. Pinching causes pupils dilate with slow return in alcohol. Alcoholics तो मैकेवन साइन होती है, ये मैकेवन साइन होती है कि पिंचिंग करने पर प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं और स्लोली रिटर्न होते हैं अपनी पोजीशन पर इन द अल्कोहलिक्स में।
तो इसे मैकीवन साइन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वाउंड इन सुसाइडल बुलेट इंजरी। सुसाइडल बुलेट इंजरी में जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वाउंड की, वो क्या होती है? टेम्पोरल। चाइल्ड रिसेंबल्स ग्रैंड पेरेंट्स नॉट हिज पेरेंट्स is atavism. Child resembles grandparents, not his parents, is atavism. Postmortem cooling of body is algar mortis. Postmortem cooling of body is algar mortis. Individual cell death after death is seen in stage of rigor mortis. Individual cell death after death is seen in stage of rigor mortis. rigor mortis में जब इंडिविजुअल सेल डेथ होती है। फर्स्ट मसल टू स्टीफन इन राइगर मॉर्टिस मायोकार्डियम। फर्स्ट मसल जो स्टिफ होती है राइगर मॉर्टिस में, वो मायोकार्डियम होती है। फर्स्ट मसल टू स्टीफन इन राइगर मॉर्टिस मायोकार्डियम। लास्ट मसल टू स्टीफन इन राइगर मॉर्टिस स्मॉल मसल ऑफ फिंगर्स एंड टोज। स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज जो होती हैं वो लास्ट मसल होती हैं राइगर मॉर्टिस में जो स्टिफ होती हैं। राइगर मॉर्टिस में जो स्टिफ होती है होने वाली लास्ट मसल्स कौन सी हैं? मसल्स ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज इज द लास्ट मसल्स विच आर स्टिफन in rigor mortis. First organ to putrefy is larynx and trachea. First organ to putrefy is larynx and trachea. larynx and trachea फर्स्ट ऑर्गन होते हैं जो पुट्रीफाई होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी टिश्यूज आफ्टर डेथ इज एडिपोसियर फॉर्मेशन। डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी टिश्यूज आफ्टर डेथ इज नोन एज एडिपोसियर फॉर्मेशन। Intercourse of man with woman closely related to him by blood. Intercourse of man with woman closely related to him by blood is incest. अगर वो closely related है by blood तो उसे incest कहेंगे। Anal intercourse between two males is known as sodomy और बगरी। सोडोमी और बगरी कहलाता है एनल इंटरकोर्स बिटवीन टू मेल्स। मर्डर सेक्शन जो होता है वो IPC 300 होता है। IPC 300 इज द मर्डर सेक्शन। मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बर्न 44 डिग्री सेल्सियस एक्सपोजर फॉर 5 to 6 आवर्स। व्हेन 46 डिग्री सेल्सियस एक्सपोजर हो रहा है 5 to 6 आवर्स तक के, तो ये मिनिमम टेम्परेचर है जो प्रोड्यूस कर सकता है बर्न को, इसकी वजह से बर्न हो सकता है। 44 डिग्री सेल्सियस एक्सपोजर फॉर 5 to 6 आवर्स। गार्लिक लाइक ऑर्डर पोस्टमार्टम इज सीन इन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। गार्लिक लाइक ऑर्डर पोस्टमार्टम इज सीन इन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग में पोस्टमार्टमली हमें गार्लिक लाइक ऑर्डर मिलती है। रोड पॉइजन इज धतूरा फेस्टोसा। धतूरा को जब रोड पॉइजन बोलते हैं तो रोड पॉइजन क्या है? धतूरा फेस्टोसा। डिटेक्शन ऑफ ओल्ड ब्लड स्टेन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्शन ऑफ ओल्ड ब्लड स्टेन्स पुराने ब्लड स्टेन्स को का डिटेक्शन करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्शन ऑफ ओल्ड ब्लड स्टेन्स बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो है वो उसको डिटेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम आफ्टर स्नैक बाइट का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है फ्राइट, यानी कि डर जाता है पर्सन। वहशत की वजह से ही मौत, यानी कि पहला उसका जो है सबसे पहले उसको वहशत हो जाती है, फ्राइट होता है वो। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है आफ्टर द स्नैक बाइट। पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन, डायरिया, गार्लिक ऑर्डर इन ब्रेथ, ये सब फीचर्स किसके हैं? आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होगा? पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन होगा, उसको डायरिया होगा और गार्लिक लाइक ऑर्डर इन ब्रेथ में जो है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर होंगी। टेंटेटिव कट्स आर सीन इन सुसाइडल वाउंड। सुसाइडल वाउंड में जब टेंटेटिव कट्स दिखाई देते हैं, हाथ पर छोटे छोटे कट्स दिखाई देते हैं, मुतअद्दिद कट्स दिखाई देते हैं, वो टेंटेटिव कट्स कहलाते हैं। तो टेंटेटिव कट्स जो है वो हमें सुसाइडल वाउंड में मिलते हैं। हीमोडायलिसिस इज एब्सोल्युटली इंडिकेटेड इन पॉइजनिंग ऑफ मिथेनॉल।
लीडिंग क्वेश्चन आर आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हम लीडिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंडक्ट मनी क्या है? इज़ ट्रैवल एक्सपेंसेस टू एक्सपर्ट विटनेस इन सिविल केसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होते हैं टू एक्सपर्ट विटनेस इन सिविल केसेस में एक्सपर्ट विटनेस के लिए जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो कंडक्ट मनी कहलाता है। कंडक्ट मनी इज़ travel expenses to expert witness in civil cases. Forcefully diuresis is done in barbiturate poisoning. Myoglobinuria is seen in patient after which mode of injury? Crush injury. Crush injury के बाद जो है वो myoglobinuria is seen in patient after crush injury. क्रश इंजरी के बाद जो वो मायोग्लोबिनुरिया दिखाई देता है पेशेंट में। कोब्रा वेनम इज़ प्राइमरीली न्यूरोटॉक्सिक। कोब्रा वेनम जो होता है वो प्राइमरीली क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। कॉर्पस डेलिसिटी मीन्स एसेंस ऑफ क्राइम। एसेंस ऑफ क्राइम क्या है? कॉर्पस डेलिसिटी कहलाता है। कॉर्पस डेलिसिटी मीन्स एसेंस ऑफ क्राइम। कैफे कोरोनरी इज़ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कैफे कोरोनरी इज़ ड्यू टू दी कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है कैफे कोरोनरी होता है। स्वेटिंग डज नॉट कॉज हीट स्ट्रोक। स्वेटिंग डज नॉट कॉज हीट स्ट्रोक। स्वेटिंग की वजह से जो है वो हीट स्ट्रोक नहीं हो पाता। फीमेल पेशेंट विथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स इज नोन एज स्टेरिलिटी। फीमेल पेशेंट विथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स इज नोन एज स्टेरिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 365 पॉइंट्स टोटल हो चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जल्द ही मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।